हेलो, आवाज आ रही क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is my default. I just want to tell you, this is my default ID password. So whenever your lab will come, so you will join with the same ID and password. Clear? Hello. Yes, sir. Okay, sir. All of you are getting my points. What I have said. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what I am saying, this is the default ID and password, meeting ID and password. So for the electronics lab, you all are requested whenever your turn comes. Clear? So you will join with the same ID and password until unless मैं जब तक कोई चेंज नहीं करूंगा, चेंज करूंगा तो आपको बता दूंगा जरूर. And suppose if I am not sending any schedule, then you can join with the same ID and password on your scheduled time. Okay? Okay, sir. Yes, sir. So this is the default for me here and you also. So the ID password for this lab is this, जो मैंने भी आपको बताया है, इसे आपको ज्वाइन करना है आगे भी, ठीक है? Okay, so today we are in the this is your second lab, I think. Clear? So am I right? This is the second lab for all of you for electronics. Yes, sir. Okay, so today Yes, we will sir. start the experiments. Clear? One more thing I just want to tell you, you all can mark your attendance with your roll number and name in the chat box. You all are also requested to kindly mark your attendance as well in the chat box. Okay, with your roll number and name. Okay, so I just share you. I'm just sharing you some details regarding the lab. Clear? Just wait while a minute. I'm just sharing you the file. Okay, sir. Just wait. Till then, kindly mark your attendance. Okay, so I think we are now available. Okay, so I'm just sharing you a file. Okay, so is it visible to all of you? This file is visible to all of you. Just see. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Okay, अभी दिख नहीं रही है फाइल ये. हाँ सर, अब दिख रही है, मतलब शेयरिंग हो रही है. Okay, lab activity I have sent. Clear? So देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे लैब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के बारे में. And we have briefly understand some logics for and some devices, some components in this lab. Clear? कुछ हमने devices के बारे में स्टडी किया था, कुछ हमने आपको डायोड एंड ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ टर्म बताए थे. क्लियर? Then we have discussed the various active and passive component, then basic fundamental regarding CRO, multimeter, and so on. Clear? So in the today's lab, basically, in the today's lab, I'm going to just explain you. Yeah, we can say I'm just starting from the experiment number 4. All of you can see the fourth experiment is the PN junction diode, the characteristics of PN junction diode, then static and dynamic resistance measurement from the graph. Clear? So we will start from this experiment. क्योंकि आपका पहला जो 3 एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स आर स्टडी बेस्ड. So I will provide you the videos and also discuss later on. But initially I am going to start with the PN junction diode. We will start with the characteristics, how we can draw the characteristics of the PN junction diode, static and dynamic resistance, how we can measure. So I think
I am audible to all of you properly. Now I can start. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can see we have a link over here. Here. So that is exactly the virtual lab link. So you can see VLAB is the virtual lab link. This is provided. So I am just I have also the self-recorded demo video. So I will provide you this. So you can also access from that. That is demonstrated in the into the lab, basically the college lab. So I will provide you. Also, we can do that experiment with the help of this virtual lab. Okay, so the link is there. You can see, and that is provided in this blog, basically where the fourth experiment is there. So I am just clicking on this link, and you will see how we can go on this. Suppose I am allow this. So I will directly jump to that platform where this experiment belong to. Clear? So थोड़ा सा मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बता देता हूँ. पीएन जंक्शन डायोड एग्जैक्टली आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा. इट इज ए टाइप पी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने से वी गॉट अ बेसिकली स्ट्रक्चर which is known as PN junction. Clear? जिसमें P type semiconductor and N type semiconductor material evolve होता है, and then when they will join to each other, they will form a junction through which the junction is what a continuous type in nature. So they can communicate the information from one end to another end through that junction, or we can say that the channel is what? Channel is continuous. So they can communicate with the holes and electrons from there. Clear? तो जैसे P है या N है, इसमें से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जो भी मूव करेंगे वो उस जंक्शन के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं. क्लियर? Am I clear? मेरी बात सभी को समझ Yes, में आ sir. रही है? जंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. क्लियर? उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, नाउ वी हैव द फाइल. नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द फाइल. वी हैव नाउ, सो जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, then we move to this platform. You can see आप लोग के पास भी लिंक अवेलेबल है, वो जो मैंने शेयर किया है. Whenever you will access on the link, you will directly jump to this platform. Clear? एक्सपेरिमेंट जो है उसी के सामने दिया हुआ, फोर्थ एक्सपेरिमेंट के सामने. I am considering as a first experiment now. Okay, so if you see, we are now discussing the VI characteristics of the diode. So before going to discuss the characteristics of the PN junction diode, we just learn about the PN junction diode. So what I am saying कि जैसे P टाइप सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर है. N टाइप सेमीकंडक्टर इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, P टाइप सेमीकंडक्टर इज कैरिंग होल्स इन मेजॉरिटी. तो अगर आप दोनों डायोड को, मतलब P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर को जब ज्वाइन करेंगे तो PN जंक्शन डायोड बनेगा. क्लियर? उसको आप चाहो तो फॉरवर्ड बायस बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो रिवर्स बायस बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो. इफ यू मेक इट फॉरवर्ड बायस, then what you will do, the positive side of the diode, that is the P side, will be connected with the plus side battery of the DC supply, and negative side will be connected with the negative side of the diode will be connected with the negative battery of the DC. Clear? So you can see this is how the connection is established. So this is P type semiconductor, this is the positive side, this is N type semiconductor, this is the negative side. P side is connected with the plus supply voltage, N side is connected with the negative supply voltage. Clear? When the connection is done, as you can see, the same connection means we can say the diode means positive side is connected with the positive side of the battery, negative is connected to the negative side. So it is now forward bias. Clear? Forward bias हो गया है, तो अब आपका करंट फ्लो करेगा. So circuit will be completed and the current will flow. क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट हो गया है. अपोजिट तो है नहीं कि हमने प्लस को प्लस से ही कनेक्ट किया है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, हमने बताया था ये पी होता है, पी में होल्स होते हैं, तो पॉजिटिव होल्स को रिपल करेगा. क्योंकि बैटरी भी प्लस है और यहाँ पे होल्स हैं, तो होल्स को ये प्लस रिपल करेगा, तो होल्स आपके एन की तरफ भागेंगे. और एन वाले में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन्स को आपने नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा, रिपल इलेक्ट्रॉन रिपल होके इधर भागेंगे. क्लियर? So I'm just highlighting this portion. Okay. So देखिए होल्स आपके इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आएंगे. क्लियर?
सो इधर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर आपका होल्स जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के मूवमेंट से क्या होगा, यू विल फाइंड अ करंट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, तो सर्किट विल बी गेट कंप्लीटेड एंड यू विल फाइंड द करंट। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So this is the forward bias condition of the PN junction diode. Now if I talk about the reverse bias condition, ठीक है। अच्छा, हम फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू एग्जैक्टली, वी मेजर्स द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द डायोड। जैसे ये डायोड है हमारा, ठीक है, तो ये डायोड लगा हुआ है सीरीज में। वी जस्ट ट्राई टू, पहली बात आप ये समझ लीजिए, दो तरह के डायोड होते हैं, प्रैक्टिकल डायोड, एक आइडियल डायोड, ठीक है। और इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। तो डायोड दो कंडीशंस को शो करता है, या तो डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा या डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल डायोड हो चाहे वो आइडियल डायोड, इट डजंट मैटर। क्लियर? तो प्रैक्टिकल डायोड में एक खास बात होती है कि प्रैक्टिकल डायोड में डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगा होता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड कह सकते हैं। क्लियर? Diode itself have a resistance that is called the internal resistance of the diode, and in case of practical diode the resistance is considered, while in case of the ideal diode the resistance will be zero। क्योंकि आइडियल का मतलब है कि उसमें फिर कोई हिंड्रेंस नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो अगर इट इज आइडियल डायोड, सो देयर विल बी नो अपोजिंग ऑफ द करंट। क्लियर? सो इट इज जस्ट आइडियल इन कंडीशन। सो अगर मान लीजिए डायोड अगर हमारा आइडियल हो या प्रैक्टिकल हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे यहाँ से, अभी जैसा आप देख रहे हैं सर्किट में, इट इज फॉरवर्ड बायस, तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। क्लियर? एंड शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि इस तरीके से ये डायोड लाइन की तरह काम करेगा, इट विल बिहेव एज ए लाइन वायर, सो इट इज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, दिस विल बिहेव एज ए लाइन टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर? तो डायोड ऐसे लाइन वायर की तरह हो जाए, लाइव वायर हो जाएगा, and the current will flow and there will be you can say there will be a closed loop through which you can find the value of current, and if the current is available then you can also find the voltage and current both you will can find। Clear? Yeah, you can measure from the voltmeter and ammeter। Clear? तो इस तरीके से अब ये हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गई। नाउ द इफ द सेकंड कंडीशन इज द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं कि चाहे डायोड की पोलैरिटी चेंज कर देंगे या बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देंगे, लेकिन किसी एक ही को चेंज करेंगे, चाहे बैटरी चाहे डायोड। तो सपोज यू इन्वर्ट द डायोड, डायोड को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं, डायोड को हमने ऐसे लगा दिया, एक मिनट, जस्ट रफिंग इट। ओके, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में मैंने क्या बोला कि हमने डायोड को रिवर्स कर दिया और बैटरी हमने एज इट इज रखा प्लस माइनस। तो अब आप देख सकते हैं प्लस वाले साइड की तरफ नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव डायोड लगा हुआ है, और पॉजिटिव वाले साइड की तरफ प्लस की तरफ नेगेटिव लगा हुआ, पॉजिटिव डायोड की तरफ नेगेटिव बैटरी लगी हुई है। तो नाउ इट इज अपोजिट इन नेचर, तो इट विल बिहेव एज अ रिवर्स बायस। क्लियर? तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड करंट मिलती है, रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स करंट मिलती है। रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड जनरली आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज ब्रेक डाउन कंडीशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्रेक डाउन कंडीशन। क्लियर? जो आइडियल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होने पे शॉर्ट सर्किट होता है और वो जीरो वोल्टेज शो करता है अपने क्रॉस, लेकिन करंट जीरो नहीं होती है। और जो प्रैक्टिकल डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस होने पे शॉर्ट सर्किट वो भी होता है, लेकिन वो कुछ वोल्टेज को शो करता है, जीरो वोल्टेज शो नहीं करता, कुछ वोल्टेज शो करेगा। क्लियर? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा। ठीक है ना? जैसे आपका सेट सिलिकॉन डायोड हो गया, जर्मेनियम डायोड हो गया। क्लियर? जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सर्टेन वोल्टेजेस शो करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से। और रिवर्स बायस होगा तो रिवर्स बायस होने पे सर्किट ब्रेक हो जाती है कुछ समय बाद, तो उसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी ये ब्रेक होगा जिस वोल्टेज पे, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, जैसे एक टर्म पढ़ा होगा जेनर ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे आपको।
तो ये रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस में क्या होता है कि सर्किट चूंकि ब्रेक हो जाती है तो करंट जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डायोड ब्रेक हो जाता है। ये वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो ये डायोड धीरे कुछ समय बाद रिवर्स बायस की वजह से ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद करंट जीरो कर देता है, लेकिन वोल्टेज जीरो नहीं होती है। उसके अक्रॉस वोल्टेज आपको दिखेगा बट करंट विल बी जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, सर्किट से रिलेटेड थी। नाउ वी कम टू द इसी का हम लोग सर डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे अभी। हाँ सर रिवर्स बताइए। करंट में एसआई डायोड सर छोटा क्यों होता है जी डायोड से? छोटा होता है मतलब समझा नहीं मैं। सर मतलब एक था सर क्वेश्चन में, तो सर मतलब रिवर्स करंट में एसआई डायोड जो होता बेटा है मच स्मॉलर देन। डायोड का साइज तो एक ही रहता है, डायोड छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? डायोड का साइज एक ही रहता है सर? नहीं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो डायोड जो हाँ सर। होते हैं, हाँ इनके हाँ। वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं। हाउ कैन यू हाँ सर वो तो डिफरेंशिएट पता है, ऑन द मतलब बेसिस ऑफ 0.7 होता है वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन का। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आर यू सेइंग दैट the silicon diode is smaller than the germanium diode? Are you saying यस like सर that? यस सर। Where you have studied? सर मतलब क्वेश्चन में था सर इलेक्ट्रॉनिक के, मतलब सर ने बताया था। नहीं, नहीं तो ये या संजय तो सर ने। कुछ क्वेश्चन ये और रहा होगा। Sir, सर maybe he's talking about depletion layer. हाँ, ये हो सकता है डिप्लेशन लेयर बताया होगा उन्होंने। Yes, डिप्लेशन sir. रेट का नहीं सर, सैचुरेशन करंट का था मतलब सर क्वेश्चन ये था, व्हाई इज रिवर्स करंट इन साइड डायोड मच स्मॉलर देन कंपेरेबल टू जी डायोड? वो लीकेज करंट होती है बेटा, उसको सैचुरेशन करंट लीकेज करंट बोल सकते हैं। लीकेज करंट सिलिकॉन में कम होती है एज कंपेयर टू हाँ सर, वो जर्मेनियम डायोड। सैचुरेशन। बेटा सर वो वैसे अलग ऐसा चीज है। होता क्यों है? जो रिवर्स करंट होती है वो सिलिकॉन के केस में कम होती है। एक्चुअली टेम्परेचर का रोल होता है इसमें। एक डायोड इक्वेशन होती है, आईडी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर बी अपॉन ईटा बी टी माइनस वन। क्लियर? तो यस जैसे सर। हाँ, इसमें कई फैक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है डायोड के ऊपर। तो डायोड जैसे मान लीजिए अगर हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन जो हमारा डायोड है उस वो पानी टेम्परेचर को ले आओ। somebody is ओके बेटा, कोई बीच में बोल रहा है तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट सिलिकॉन की टेम्परेचर बियरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ठीक है ना? और ओके सर। एक एक आपको सर ने एक टर्म बताया होगा, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द करंट बिकम्स डबल। बताया सर ने? 10 डिग्री Yes, मतलब सर yes, बताया sir. होगा Yes, बट। sir. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से करंट डबल हो जाती है। ठीक है? Yes, sir. तो जो यस हाँ, सर। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन की जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेबिलिटी है वो जर्मेनियम से ज्यादा आती है। मतलब जो हमारा टेम्परेचर, जैसे हीटिंग, एग्जैक्टली टेम्परेचर का मतलब होता है हीटिंग। क्लियर? किसी का यस सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे डिवाइस को तो वो हीट ज्यादा होगा। ठीक है ना? यस तो सर। यस सिलिकॉन, सर। हमें हमें ऐसा ही डिवाइस चाहिए जो ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हमको तो डिवाइस ऐसा चाहिए ना जो ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता हो, जल्दी ब्रेक ना हो। यस सर। रिवर्स बायस, जब डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो कुछ वोल्टेज के बाद डायोड ब्रेक हो जाता है, कुछ हाँ सर्टेन सर। वोल्टेज के। अगर आप जर्मेनियम वो यूज करेंगे तो सिलिकॉन के कंपैरिजन में तो जर्मेनियम जल्दी ब्रेक होगा एज हाँ सर, कंपेयर टू पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन। जो होता है उसको सर अपोजिट करने के हाँ लिए हाँ टेम्परेचर को बढ़ाते हाँ हैं। हाँ। यस सर। तो जो आप जो रिवर्स सैचुरेशन करंट हमसे पूछ रहे हैं, ये एग्जैक्टली रिवर्स बायस हाँ हाँ। कंडीशन में आती है। हाँ सर क्लियर? समझ गए, मतलब उसको सर जब बैरियर होता है उसको सर, मतलब एक टाइम आता है जब वो तोड़ के सर डिप्लेशन रेट को तोड़ के वापस उसमें चले जाते हैं, हाँ हाँ, ब्रेक डाउन कंडीशन में चला ब्रेक जाता है वो। डाउन कर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, हाँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू दैट है। क्लियर? यस सर। सो थैंक यू सर। वो आपको सर अगर टेम्परेचर वाला रोल आप सर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। क्लियर? यस सर। और यही इसी पे बेस एक क्वेश्चन भी है, व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके दो तीन पॉइंट हैं। सिलिकॉन को हम हम्म। जर्मेनियम पे क्यों प्रेफर करते हैं?
दोनों ही सेमीकंडक्टर डायोड हैं, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा प्रेफर किया जाता है जर्मेनियम से। ठीक है, उसका सबसे Yes, बड़ा एक sir. रीजन यही है कि सिलिकॉन की टेम्परेचर बियरिंग कैपेबिलिटी, I think so. If I remember the temperature value, I think it is taking the value up to 1000 degrees Celsius. 1000 degrees Celsius तक it can bear. Are you getting my point? Yes, sir. इसकी और जो जर्मेनियम है उसका बहुत कम है वैल्यू उसके कंपैरिजन में. That is around 700 to 800 around. Clear? Yes, तो sir. इस वजह से हम उसको प्रेफर करते हैं. इसीलिए उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट भी वैरी करता है दोनों का. ठीक है ना? Yes, sir. Okay. So so we now come to our discussion now. तो ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हो गया. तो रिवर्स बायस में रिवर्स करंट मिलती है जो कि ब्रेकडाउन होने के बाद जो है बहुत तेजी से बढ़ती है. ठीक है, रिवर्स करंट जब ब्रेकडाउन जब होता है, जैसे जिनर डायोड की अगर हम बात करें तो जिनर डायोड में ब्रेकडाउन 6 वोल्ट के अंदर हो जाता है. और एक डायोड होता है एवलांच डायोड. एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो 6 से ऊपर वोल्टेज पे होता है. ठीक है ना? जब रिवर्स बायस की बात करेंगे, रिवर्स बायस रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट को देता है प्लॉट करके. ठीक है, और जो फॉरवर्ड बायस होता है वो फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉरवर्ड करंट के बीच का प्लॉट होता है. फॉरवर्ड करंट हमेशा मिली एम्पियर में मेजर की जाती है. रिवर्स करंट आपकी माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में मेजर की जाती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ टर्म्स है आपको ध्यान रखना है दिमाग में. जो फॉरवर्ड करंट हम आपकी लोग आवाज सही से निकालेंगे जब नहीं आ रही फॉरवर्ड. है, रुक रुक. हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, Yes, आवाज sir. आ Sir, रही है? your audio is not clear. आई सर थिंक आपकी मेरे आवाज आ साइड रही से मेरा नेटवर्क सर सही आ है रही बेटा. आपका नेटवर्क मे बी योर नेटवर्क इज सम बिट लो, लिटिल बिट लो. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें जो फॉरवर्ड करंट हम मेजर करते हैं वो मिली एम्पियर में मेजर करते हैं. ठीक है, और रिवर्स बायस में जो रिवर्स करंट होती है वो हमारी माइक्रो एम्पियर में मेजर की जाती है. ठीक है ना? या नैनो एम्पियर में मेजर की जाती है. डिपेंड्स अपॉन डायोड टू डायोड. क्लियर? Now, if I talk about one more thing, I just want to discuss you. जो ऐसे प्रैक्टिकल डायोड जो होते हैं, हम वी आर जस्ट यूजिंग द प्रैक्टिकल डायोड लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड में एक खास बात होती है कि प्रैक्टिकल डायोड जैसे सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो 0.7 वोल्ट उसका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है जिसको नी वोल्टेज भी कहते हैं हम लोग. ठीक है, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज, ये सब ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं. तो जो जहां से करंट राइज करना शुरू करता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ सिलिकॉन डायोड यूज कर रहा होता सपोज, यहाँ पे उसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट कर देता. ठीक है, तो सिलिकॉन डायोड का चूंकि मिनिमम वोल्टेज उसको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए फॉरवर्ड बायस में, तो जब तक 0.7 वोल्ट आप डीसी वोल्टेज उसको नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा. ठीक है, जैसे ही मान लीजिए ये हमारा 5 ये वोल्टेज है, इसको हम बढ़ाना शुरू करेंगे. इसकी मान लीजिए 5 वोल्ट डीसी सप्लाई हमने लगाई हुई, तो इसको जीरो से धीरे धीरे आप बढ़ाना शुरू करेंगे. तो जीरो से लेके जब तक वो 0.7 नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि 0.7 नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये ऑन ही नहीं होगा. इसको मिनिमम 0.7 चाहिए ऑन होने के लिए. ठीक है, तो जीरो से जब आप 0.7 तक जाएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा. जैसे ही 0.7 के आसपास वैल्यू मिलेगी तुरंत ये ऑन हो जाएगा. और ऑन होने के बाद आप 0.7 के बाद जैसे थोड़ा सा भी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी. रैपिड इंक्रीज इन द करंट विल बी देयर. सो इट इज व्हाट, इट इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू यूज सिलिकॉन डायोड, क्लियर. एंड इफ यू यूज जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम का नी वोल्टेज कितना होता है? 0.3 वोल्ट. तो अगर 0.3 पे पहुंचेगा तो ही ऑन हो जाएगा. जर्मेनियम 0.3 पे ही ऑन हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जर्मेनियम को मिनिमम 0.3 वोल्ट ही रिक्वायर्ड है ऑन होने के लिए. तो जब आप 0.3 पे पहुंचेंगे तभी ये ऑन हो जाएगा जर्मेनियम अगर होगा तो. ठीक है, वहीं से उसकी करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी. लेकिन सिलिकॉन होगा तो 0.7 पे ऑन होगा. ओके, सो नाउ लेट वी स्टार्ट विद द, ये आप देख सकते हैं ये रिवर्स बायस है. एक मिनट, जस्ट शोइंग यू. यू कैन सी दिस इज द रिवर्स बायस. यहाँ आप देख सकते हैं प्लस साइड वाले को अपने नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड कनेक्ट किया हुआ है और माइनस को प्लस साइड से कनेक्ट किया हुआ. तो दिस विल फॉर्म द रिवर्स बायस. क्लियर?
ओके, ये देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये फॉरवर्ड बायस में जो भी हमने आपको बताया है यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। यू कैन सी, सभी को दिख रहा होगा आई थिंक। इज इट Yes, विजिबल sir. टू ऑल ऑफ यू? ये अभी हम लोग देखेंगे, ये बनेगा, ये बनाएंगे अभी हम लोग इसको। ये देखिए फॉरवर्ड करंट है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है, यही वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा करंट जो है मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, ये अभी हमने बताया भी था, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। ये वोल्टेज है, आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने आई थिंक सिलिकॉन डायोड यूज किया है, ठीक है। तो ये 0 से लेके जब तक आप यहाँ 0.7 तक नहीं पहुंचेंगे, यहाँ से बल्कि राइज करना चाहिए था इसको, तो 0 से लेके 0.7 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये अपनी रीच वैल्यू पे पहुंचेगा, तो उससे पहले देखिए करंट लगभग 0 है जब तक ये ऑन नहीं हुआ। जैसे रीच वैल्यू पे पहुंचेगा उसके बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी, इसको बोलते हैं रैपिड इंक्रीज इन करंट। और ये वो वोल्टेज होता है जहां से बढ़ना शुरू करता है, मिनिमम वोल्टेज जहां से राइज करना शुरू करती है करंट, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। ऐसे अभी हम आपको रिवर्स बायस भी दिखाएंगे। देखिए जर्मेनियम के लिए पहला वाला सिलिकॉन के लिए था। जर्मेनियम में देखिए 0.3 से बढ़ना शुरू कर रहा है क्योंकि इसको मिनिमम 0.3 चाहिए, ठीक है। और ये आपकी डायोड इक्वेशन है जो कि जनरली वे में यूज की जाती है, जो भी हमने आपको बताया था, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी बाई ईटा वी टी माइनस 1। ओके, सो नाउ वी कम टू the real example of the real scenario of the simulation. Clear? So I think you all might be clear with the concept जो मैंने अभी समझाया आपको, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, तो sir. देखिए अभी हम सिलिकॉन डायोड के फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। सपोज इस तरह से कुछ सर्किट अभी आपको दिखेगी, ठीक है, जो हम इसका सिमुलेशन दिखाएंगे आपको। ये देखिए डीसी वोल्टेज हो गया, प्लस वाले को हमने प्लस से कनेक्ट किया हुआ, ये डायोड है, डायोड का पॉजिटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है डायोड के। और ये रेफरेंस ग्राउंड वोल्टेज है, ग्राउंड देना ही पड़ता है, अर्थिंग देनी पड़ती है तभी सर्किट काम करेगी, ठीक है। तो ये हाई सप्लाई हो गया, ये लो सप्लाई हो गया। हाई सप्लाई से डायोड कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड से आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस हमने एक लगा रखा है, इसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। क्लियर? ये करंट को लिमिट करता है, इट जस्ट ट्राई टू लिमिट द करंट, तो इसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टर बोलेंगे। जो सीरीज में लगा रखा है हमने डायोड के साथ, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक अमीटर कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, अमीटर से हम करंट की वैल्यू को मॉनिटर करेंगे, वो यहाँ डिस्प्ले करेगा नीचे, अभी दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। अमीटर से करंट मेजर करेंगे, जो कि सीरीज में हमने लगा रखा है, 2 पॉइंट्स कनेक्ट किए हुए हैं अमीटर, और डायोड के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज मेजर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। दिस इज द वोल्ट मीटर। वोल्टेज यहाँ से मेजर करेंगे, करंट यहाँ से मेजर करेंगे। यहाँ से आप जब इसको 0 से वैल्यू आप बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे डीसी वोल्टेज जो हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम रेटिंग 5 वोल्ट है, ठीक है। तो 0 से 5 वोल्ट तक जब आप इसको बढ़ाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये भी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं तो। और अगर रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे तो ऐसे ही आपका ये भी चेंज होने लगेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज और करंट कम होनी शुरू हो जाएगी, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो वोल्टेज और करंट बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो अभी हम आपको फिक्स वैल्यू लेके दिखाएंगे कैसे चेंजेस होता है। रिवर्स बायस ये है, ठीक है। तो देखिए चाहे जर्मेनियम डायोड हो चाहे सिलिकॉन डायोड हो, वर्क दोनों एक ही तरह से करेंगे, ठीक है ना। बस दोनों के फॉरवर्ड वोल्टेज में डिफरेंस होता है, एक का 0.3 वोल्ट होता है, एक का 0.7 वोल्ट होता है। बाकी वर्किंग इज ऑलमोस्ट सेम, सर्किट दोनों की सेम बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या है, अगेन हमने आपको बताया था, डायोड को चाहे उल्टा कर दीजिए चाहे बैटरी को उल्टा कर दीजिए। तो हमने क्या किया, डायोड को पलट दिया है, नेगेटिव ऊपर कर दिया, पॉजिटिव नीचे कर दिया, और ये आपका पॉजिटिव साइड, ये एज इट इज है वोल्टेज जो हमने लगाया हुआ है। अब आप देखिए प्लस साइड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड एंड पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। नाउ इट इज रिवर्स बायस। क्लियर? अब क्या होगा, अगेन we have the circuit is same almost clear but the diode is interchange, clear? So अब हमने क्या किया, अब हम अगेन जब इसको बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो गया है। तो रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो रिवर्स करंट आपको मिलेगी, रिवर्स करंट आपको अपोजिट मिलेगी। जैसे फॉरवर्ड करंट इधर से मिल रही थी,
तो रिवर्स करंट आपको अपोजिट मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। जो लूप लगेगा वो उल्टा लगेगा ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फॉरवर्ड वाले में क्लॉकवाइज लूप चल रहा था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो रिवर्स करंट आपको यहाँ से मिलेगी और फॉरवर्ड करंट आप यहाँ से रिवर्स वोल्टेज आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज दोनों आप, वोल्टेज हमेशा हम डायोड के क्रॉस मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, डायोड ऊपर भी हमने पैरेलल में लगाया था, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है डायोड के साथ, लेकिन वोल्ट मीटर को पैरेलल में। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया हुआ है, कोई बताएगा? Yes, sir. Because voltage becomes equal in parallel. गुड। पैरेलल में जो भी सर्किट्स होती हैं उसमें वोल्टेज सेम होता है। जैसे घर में हम लोग वायरिंग करते हैं तो पैरेलल में करते हैं, इस सब में सेम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। इसीलिए पैरेलल में ही हमने कनेक्ट किया वोल्ट मीटर, क्योंकि एक वायर यहाँ लगा दी, एक वायर यहाँ लगा दिया, तो जो भी डायोड पे वोल्टेज डेवलप होगा वो आप वोल्ट मीटर पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा आपको रीडिंग, ठीक है। सीरीज में हमने अमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो करंट को हम सीरीज में एमीटर से मेजर कर सकते हैं। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सभी को पता है। द सेम कंडीशन इज फॉर जर्मेनियम डायोड, यू कैन सी। जर्मेनियम में केवल वही है आपका डायोड हमने जर्मेनियम यूज कर लिया, बाकी एवरीथिंग इज सेम। नाउ वी कम टू द सिमुलेशन डायरेक्टली। सिमुलेशन दिख रहा है, आई विल टेल यू अबाउट वन। सिलिकॉन के लिए मैं बता देता हूँ, जर्मेनियम के लिए आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे सिमुलेशन पे। जब मैंने क्लिक किया तो वी कम टू दिस पेज। क्लियर? अब हमारे पास आप देखिए, इफ यू स्टार्ट विद द फॉरवर्ड बायस से शुरू करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट दिख रहा है। फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड, फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट, रिवर्स बायस ड्रॉ सर्किट, फॉरवर्ड बायस जर्मेनियम डायोड, फॉरवर्ड बायस जर्मेनियम डायोड। तो अगर ड्रॉ सर्किट पे जाते हैं, तो इफ यू कम टू द ड्रॉ सर्किट पेज, and one more thing is there, we have this also here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं we have the सर्किट सभी को दिख रही होगी, सर्किट दिख रही है, वही वाली यस सर्किट सर। जो भी हमने देखी थी। ओके, सो इस सर्किट में आप देख सकते हैं we have the circuit in forward bias, that is silicon based diode is used. Clear? Now we have the experimental table on the left side with the serial number, forward voltage and forward current. We have the DC voltage. This is the diode connected in forward bias with the battery. This is the resistance. This is the ammeter. This is the voltmeter. And these are the control panels. So इस control panel से हम लोग क्या करेंगे, एक पहले डायोड चूज कर लेते हैं। तो हमने एक डायोड चूज कर लिया IN4001। ये सारे डायोड्स की रेटिंग दी हुई है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक डायोड आप ले सकते हैं। तो सपोज हमने फर्स्ट डायोड ही ले लिया IN4001। क्लियर? दिस इज सिलिकॉन बेस्ड डायोड विद द एक सेलेक्टेड डायोड हमने ले लिया IN4001। दिस इज द नंबरिंग ऑफ दैट डायोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये देखिए ये सर्किट है, Yes, सर्किट sir. को आप जोड़ भी सकते हैं। ये सर्किट आप दिख रही होगी, सर्किट को आप जोड़ भी सकते हैं इफ यू वांट टू मेक द कनेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। इसी तरह आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर इस वेबसाइट की लिंक भेज दीजिएगा। बेटा ये अवेलेबल है, ये लिंक मैंने आप गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हुआ। ये देखिए तार को पकड़ के यहाँ हाँ से सर, जोड़ गूगल दिया, क्लासरूम पे है। ठीक है। ये गूगल क्लासरूम पे, ये देखिए सीधे आप वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इन दिस वे यू कैन कनेक्ट द वायर्स। ये देखिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसको हमने रेफरेंस से कनेक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक पॉइंट हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक पॉइंट हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग? तो यहाँ से देखिए ये अमीटर की रीडिंग दे देगा। एंड इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका भी एक पॉइंट हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि सर्किट आपको दिख रहा था, ठीक है ना, और एक पॉइंट हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस सर। अब आप देखिए हमारी ये सर्किट जो है ये इस तरह से बन गई, ऐसे ही बन गई जैसे ये कनेक्शन आपको दिख रहा है।
सर ओके 12th पॉइंट क्या है? क्या? सर 12th पॉइंट। अच्छा 12th पॉइंट बेटा ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब रेफरेंस वोल्टेज। सर्किट को रेफरेंस वोल्टेज देना पड़ेगा ना। एक हाई वोल्टेज ओके भी सर। होता है ग्राउंड वोल्टेज, तभी तो सर्किट वर्क करती है। अब आप यहाँ चेक कनेक्शन भी कर सकते हैं। कनेक्शन को चेक करना चाहें तो आप कनेक्शन को, अभी कनेक्शन रॉन्ग दिखा रहा है। इज देयर एनी इशू विद द कनेक्शन? यस सर, 4 क्या और 10 गड़बड़ी है? कनेक्टेड नहीं होता है 4 सर। और 10 में सर 4 और 10 कनेक्ट नहीं होगा। वो एमीटर से जाएगा सर। ओके, सो इट मींस इट इज रॉन्ग। यस सर। एक मिनट, जस्ट वेट। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग द कनेक्शन, जस्ट वेट। तो यही हम आपसे जानना चाह रहे थे। ये अगर आप लोग मतलब आप बताएंगे जैसा उसी अकॉर्डिंग करेंगे। जस्ट वेट, इट इज जस्ट टेकिंग टाइम। एक्चुअली द नेट इज स्लो, net is slow, exactly. Clear? So the net is slow, just wait. I'm just again try to access this circuit. Actually the net is a little bit slow, that's why the reason. Okay, so now we have again, तो यहाँ से देखिए हमने इसको कनेक्ट किया। We have connected this circuit. इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक मिनट। ओके ठीक है, यहाँ से हमने ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, and this is connected with this and this is connected with this. Okay, now we can check the connection. Yes sir. Okay, right connection is there. So okay, so the problem was what? From 4 to 10 we have again provided a path. Okay, we have connected twice between 4 and 10. So 4 and 10 is what? Connected with the ammeter. Ammeter से वो connection ले रहा है. Is it clear? I think everything is clear. Yes sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ वी हैव चूजन अ डायोड। एक डायोड चूज कर दिया। अभी देखिए सर्किट ऐसी हो गई आपकी जैसे ये सर्किट है। क्लियर? तो दिस इज हाउ द कनेक्शन इज डन। तो आप इसमें भी चाहो तो वैल्यूज चेंज करके यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं एंड यू कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर आल्सो। नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यूज, यू कैन सी। तो अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस का भी हम चूंकि कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए डीसी वोल्टेज है। नाउ इफ यू चेंज द डीसी वोल्टेज, हमने डीसी वोल्टेज को धीरे धीरे चेंज करना है और सारी वैल्यू जो भी हमारी आती जाएंगी हम ऐड टू टेबल करके यहाँ टेबल पे इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है ना? देखिए देखिए आप, हमने डीसी वोल्टेज थोड़ा सा अभी हम रेजिस्टेंस को मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। रेजिस्टेंस हमने मान लीजिए 320, ये हमने मान लीजिए 357 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, 357 ओम का रेजिस्टेंस हमारा देखिए यहाँ शो कर रहा है। ये जो आर लगा हुआ है ये 357 ओम सेव कर रहा है, जैसे हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाया। ठीक, नाउ वी इंक्रीज द डीसी वोल्टेज। चूंकि डायोड सिलिकॉन है, ये जो डायोड हमने यूज किया सिलिकॉन है, तो जब तक ये 0.7 नहीं पहुंचेगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। अभी हमने कितना बढ़ाया, 0.4 तक हम ले गए। ठीक है, 0.4 पे क्या हमें कोई आउटपुट मिल रहा है? नो सर। कोई डेविएशन नहीं आया इसमें। ठीक है, तो इसको हम टेबल में ऐड कर लेते हैं। वी जस्ट ऐड दिस वैल्यू इनटू द टेबल। तो देखिए पहली वैल्यू हमारी ऐड हो गई। कोई फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं मिला, कोई फॉरवर्ड करंट नहीं मिली, कोई फॉरवर्ड करंट नहीं मिली, कोई फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं मिली 0.4 वोल्ट के लिए। इज इट क्लियर? Yes sir. यस। एम आई क्लियर? अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया। वी जस्ट ट्राई टू इंक्रीज लिटिल बिट मोर। हमने मान लीजिए इसको 0.7 के या हाँ 0.7 पे आ गए। तो देखिए जैसे 0.7 पे आए तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ सर वोल्टेज Yes, थोड़ा sir. सा बढ़ी। वैल्यू चेंज हो गई है। यस सर। देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज भी चेंज हुआ होगा, फॉरवर्ड करंट में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो नाउ वी कैन सेट दिस वैल्यू। ये देखिए टेबल में हमने इंसर्ट करा दिया। तो जब हमने 0.556 हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, देन फॉरवर्ड करंट इज 0.280। जब हमने डीसी सप्लाई 0.7 वोल्ट पे सेट करी तो हमारा डायोड ऑन हो गया। ऑन होने पे फॉरवर्ड वोल्टेज ये मिला और फॉरवर्ड करंट ये मिली। इज इट क्लियर? Yes sir. मैंने थोड़ा सा इसको और बढ़ाया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा और बढ़ाया, इसको बढ़ा 1.2 कर दिया।
1.2 पे अब थोड़ा सा आप देखिए ये रीडिंग भी बढ़नी है, अब थोड़ी दिखनी शुरू हो गई होगी आपको। हाँ करंट की जो दिख रही है। करंट वाली यस रीडिंग सर। है ये भी दिखनी शुरू हो गई होगी, दिख रही है सभी। अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, इसको भी हम ऐड टू टेबल कर लेते हैं। नाउ द थर्ड वन, इससे आपकी टेबल भी फॉर्म होती चली जा रही है, ठीक है ना। टेबल आपकी ऑटोमेटिक बनती चली जा रही है। जैसे एनुअल लिखेंगे तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा ये सब, इसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा और हमने बढ़ा दिया, तो वी हैव अगेन द वैल्यू देख सकते हैं 0.578 पे 2 पॉइंट। अब देखिए वोल्टेज आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो पॉइंट्स में, करंट बहुत तेजी से बढ़ रही, एक से सीधे 2.8 पहुंच गई, इसको बोलते हैं बहुत तेजी से इंक्रीज करना करंट। अब हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, इसको हम करीब ले जा रहे हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा और ले जा रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। ओके 2.2 पहुंच गया है। अब ये देखिए 0.586 पे 4.48 पहुंच गया। 0.578 से 0.586 आपने किया, 4.48 पहुंच गया, ठीक है ना। तो हम और थोड़ा बढ़ाएंगे, देखिए हम पहुंच गए 0.594 पे 6.72 आ गया। इसको थोड़ा और ले जाइए, फॉरवर्ड वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, फॉरवर्ड करंट भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। ओके ये यहाँ देखिए आप, अब जैसे हमने दिया ये देखिए जिसको 3.9 कर दिया तो हमें 0.601 फॉरवर्ड वोल्टेज मिला, तो फॉरवर्ड करंट 9.24 हो गई, 6 से सीधे 9 पहुंच गई, ठीक है। इसको और रेजिस्टेंस को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को फिक्स रखा है। ओके तो जैसे अब इस पॉइंट पे देखिए, ऐसे आपको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना पड़ेगा। 0.604 पे 10.6 पहुंच गया, ठीक है। इसको मैक्सिमम तक ले जाते हैं हम लोग। ओके ये देखिए मैक्सिमम लिमिट पे जब हम ले गए मीन्स 5 वोल्ट हमने पूरा कर दिया इसको। अब इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ा सकते वोल्टेज आप, फॉरवर्ड वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। 5 वोल्ट दिया तो आपको फॉरवर्ड वोल्टेज मिल गया 0.607 एंड 12.3 करंट मिल गई मिली एम्पियर में। ये हमने किस पे मेजर किया है, रेजिस्टेंस 357 ओम पे मेजर किया है। अगर आप रेजिस्टेंस को और कुछ मतलब आगे पीछे बढ़ाए घटाएंगे तो आपको वैल्यू, इसको भी हम रेजिस्टेंस बढ़ाने लगेंगे तो हमको करंट और वोल्टेज कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी रेजिस्टेंस हमने फिक्स किया हुआ है, अगर रेजिस्टेंस को थोड़ा और कम करेंगे तो अभी ये वैल्यूज और कम हो मतलब बढ़ने लगेंगे। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो देखिए टेबल हमारी बन गई विथ 9 रीडिंग्स। क्लियर, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आप कनेक्शंस को यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम इसको जैसे प्लॉट करना चाहें, ठीक है, तो वी कैन डू द प्लॉट। प्लॉट कहाँ से करेंगे, देखिए प्लॉट का ऑप्शन आ रहा है यहीं पे, इसी में प्लॉट का ऑप्शन आ रहा है ऐड टू टेबल के बगल में, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो इट विल डायरेक्टली प्लॉट द ग्राफ। ये देखिए प्लॉट दिख रहा है सभी को, यस सर। प्लॉट दिख रहा है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है सभी को। हाँ सर दिख रहा है। यस सर। तो ये अभी आपने यही वाला प्लॉट देखा था पीछे, यही वाला देखा था ना फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। तो इस तरीके से प्लॉट आ जाता है। तो देखिए हमारा लगभग लगभग 0.6 के आसपास 7 के आसपास हमारी राइजिंग हो रही है, 0.7 तक जाएंगे, बहुत तेजी से बढ़ेगा ये, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट हेयर। क्लियर, सो इस तरह से आपको कुछ ये प्लॉट का प्रिंट भी लेना, प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हैं, यू हैव ए प्रिंट ऑप्शन ओवर हियर, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, तो आपको लगाना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। अब यही सेम चीज आप जर्मेनियम के लिए भी कर सकते हैं, जो मैंने सिलिकॉन के लिए किया है यही आप जर्मेनियम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आर यू गेटिंग। अब हमें अगर मान लीजिए रिवर्स बायस के लिए देखना है तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है चेक फॉर रिवर्स बायस। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूँ इसमें, आपको आपको दो चीजें निकालनी थी इसमें, फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। वो आप कैसे निकालेंगे, डायनेमिक एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस भी तो निकालना है। तो डायनेमिक का मतलब होता है फिक्स रेजिस्टेंस जिसको डीसी रेजिस्टेंस बोलते हैं, और स्टैटिक रेजिस्टेंस का वो डायनेमिक का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स रेजिस्टेंस। क्लियर, तो हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक से ही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, व्हाट यू विल डू, इसी प्लॉट पे आप दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जस्ट वेट। देखिए अभी मैं आपको एक मिनट रुकिए।
जस्ट वेट, आई एम जस्ट, हाँ जैसे ये प्लॉट आपका आ रहा है, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी को प्लॉट दिख रहा है, इसी प्लॉट पे मान लीजिए स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सपोज ले लिया, ठीक, इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी और इस पॉइंट पे एक लाइन वर्टिकली नीचे ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये वो इस पॉइंट पे नीचे ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर्टिकुलर करंट मिल जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट के रिकॉर्डिंग। तो अब आपको स्टैटिक मतलब डीसी वोल्टेज इज स्टैटिक वोल्टेज, डीसी का मतलब होता है फिक्स वोल्टेज, तो उसको हम रिप्रेजेंट, सॉरी, डीसी रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो दैट इज आर डीसी, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो डीसी वोल्टेज अपॉन डीसी करंट, तो डीसी वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट पे जो डीसी वोल्टेज होगा वो आप नीचे से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जहां ही कट करेगा ये वैल्यू आप स्केल पे देख लेंगे, और करंट देखना 0.6 है तो करंट, हाँ करंट आप यहाँ से स्केल पे देख लेंगे, तो करंट आपको दिख जाएगा कहाँ पे जा रहा है ये, यहाँ से आपको एसी रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायनेमिक को हम एसी रेजिस्टेंस बोलते हैं, डायनेमिक मतलब जो चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, एसी रेजिस्टेंस इज चेंजिंग रेजिस्टेंस, चेंज अगर आपको निकालना है तो आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, जैसे अभी हम एक पॉइंट दिखा रहे हैं ग्राफ पे, मान लीजिए आपको चेंज निकालना है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट, मान लीजिए हमको चेंजिंग रेजिस्टेंस निकालना होता, तो हम 2 पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए, ठीक, इसके रिगार्डिंग एक लाइन इधर ड्रॉ की, इसके रिगार्डिंग एक लाइन इधर ड्रॉ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, तो जैसे अब हमें मान लीजिए इस पॉइंट के बीच में चेंज निकालना, ये देखिए ये आपका चेंज है, कितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में, तो इसका चेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चेंज अपॉन ये चेंज कर दीजिए, तो चेंज इन रेजिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है, दिस इज द चेंज इन करंट दैट इज डेल्टा आई, एंड दिस इज द चेंज इन वोल्टेज दैट इज डेल्टा वी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। yes sir तो डेल्टा वी कैसे निकलेगा, डेल्टा वी निकालने के लिए ये चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वैल्यू में से 0.1 आ जाएगा ये yes इतनी वैल्यू छोटी वाली माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी, क्लियर। ऐसे ही करंट के लिए क्या करना है, इस पूरे में से ये छोटी सी वैल्यू माइनस कर दो, तो ये चेंज निकल आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। yes sir तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, इससे आपका क्या निकल आएगा, जैसे मान लीजिए डेल्टा वी हमने निकाला, मान लीजिए पहली वैल्यू 0.7 है और माइनस करने में 0.5 है, 0.7 माइनस 0.5 अपॉन सपोज 7 माइनस 3 है, बस निकला है, करंट आपका 7 मैक्सिमम जा रहा था, 3 मिनिमम, 7 माइनस 3 करंट कर दिया, तो बीच का वो करंट वाला आ गया, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड बाय डिस्टेंस बाय द yes प्लॉट, sir इसको फॉरवर्ड स्टैटिक फॉरवर्ड डायनेमिक पाएंगे, ठीक है ना, इसका प्रिंट लेके आपको निकालना पड़ेगा, प्रिंट लेके स्केल के थ्रू आप मेजर करके और फाइंड कर सकते हैं कोई भी 2 पॉइंट से, इज इट क्लियर, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। yes sir यस, इसको हम ओके लोग को अब लैब मैनुअल में लिखना है। हाँ लैब मैनुअल में लिखना है बेटा, ये प्रिंट भी लेना है, टेबल वेबल जैसे मैं बता रहा हूँ टेबल का भी प्रिंट लेना है, सर्किट ड्रॉ करनी होगी फॉरवर्ड की और रिवर्स बायस की, सर देन रेजिस्टेंस, हाँ सर इसमें जो स्केल दिया गया है सर प्लॉट में, हाँ तो सर उसमें डिविजन्स काफी कम है, तो सर हम थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। हाँ यूज कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, डिवीजन आप देख लीजिएगा, वो सब कोई ओके इशू सर। नहीं है, वो आप जैसा जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा देख लीजिएगा करके, बाकी मेन थिंग है कि आंसर सही आना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन शुड बी राइट, क्लियर, तो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे रिवर्स बायस करना है तो चेक फॉर रिवर्स बायस पे जाइए, ये नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है चेक फॉर रिवर्स बायस, तो अगर मैं रिवर्स बायस पे जाता हूँ तो अगेन इट विल शो यू द सर्किट, ये देखिए सर्किट खुल गई, सर्किट खुल गई यहाँ पे, अब देखिए इसमें रिवर्स बायस में देखिए डायोड का नेगेटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, तो इट इज रिवर्स बायस। अब हमको सब कुछ रिवर्स बायस के लिए मिलेगा, ठीक है ना, तो अगेन इफ यू सर्किट अगर हम देखें रिवर्स बायस डायोड की भी सर्किट हमारे पास अवेलेबल है, नाउ इफ यू कम टू द सर्किट ऑफ दिस रिवर्स बायस,
बेटा ये लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। If someone is asking to me about the link, I have shared you the lab activity. जैसे ये एक्सपेरिमेंट के सामने आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो आप जो कनेक्शन इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे इसमें कनेक्शन किया इसी को देख के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने पहले 1 से 3 कनेक्ट कर दिया, ठीक। जैसे उसको किया था वैसे ही कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए हमने सारे कनेक्ट कर दिए, पहले अमीटर कनेक्ट कर दिया, फिर हमने डायोड का पॉजिटिव एंड इधर से बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने रेफरेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम मीटर को वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर डायोड के नेगेटिव एंड से, वोल्ट मीटर डायोड के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। नाउ द सर्किट इज कनेक्टेड। नाउ चेक कनेक्शन में जाओगे तो कनेक्शन इज राइट लिख के आ रहा, राइट कनेक्शन इज देयर। अगर रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग लिख के आ जाएगा, जैसा पिछले वाले में हम लोगों ने कर दिया था यहाँ पे कनेक्शन करके गलती से, ठीक है। नाउ द कनेक्शन इज राइट। अब आप देखिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने फिर से सेट कर दिया, रेजिस्टेंस हमने सेट कर दिया, मान लीजिए अगेन सेम वैल्यू ही कर देते हैं। वैसे रिवर्स रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, करंट ज्यादा होती है। रिवर्स में रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। अगेन अब मान लीजिए हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, तो देखिए वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं। व्हेन यू इंक्रीजिंग द वोल्टेज, ठीक है, जब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। I'm just increasing the resistance. Okay, now increasing the voltage. जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे वोल्टेज हमने देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको आप टेबल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, ये देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ाइए। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तब ये जो रिवर्स करंट अभी आपको 1 माइक्रो एम्पियर 0.1 माइक्रो एम्पियर दिख रहा है, अभी फिक्स दिख रही है। जैसे ही डायोड ब्रेक डाउन में जाएगा, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिवर्स करंट आपकी क्या है, फिक्स है 0.1 पे। ये करंट आपकी चेंज नहीं हो रही। अभी जब ब्रेक डाउन होगा तो करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी, देखिएगा। अभी हम वोल्टेज बढ़ाते भी डायोड का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ये देखिए, ये भी वैल्यू पे हमारा सेम वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ रहा है, रिवर्स वोल्टेज, लेकिन रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन आपका करंट आपकी वही है। अभी देखिए करंट आपकी एकदम से जब ब्रेक डाउन होगा तब बढ़ेगी। अभी भी देखिए हमने 11 से 16 कर दिया, अभी भी वैल्यू वही दिखा रहा है। ये देखिए 21 कर दिया। ओके, अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। इज देयर एनी चेंज। सर डायोड आपने चूज नहीं किया है। रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर दीजिए। सर हाँ नहीं, सर, डायोड डायोड भी चूज यूज नहीं किया किया है। है। नहीं, डायोड चूज एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, डायोड इज कनेक्टेड, डायोड इज सिलिकॉन, क्लियर। अच्छा, डायोड चूज नहीं तो नहीं सेलेक्ट किया। डायोड ओके में ओके नहीं। हाँ हाँ ओके सर। ओके 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 ओके, इसीलिए गड़बड़ हो गया वो। ओके ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट अगेन, तो शायद गलती से मिस हो गया। ओके, तो आप ये टेबल्स को क्लियर कर लीजिए। एक मिनट, मैं टेबल को फिर से क्लियर कर देता हूँ। आई एम जस्ट चूजिंग द डायोड अगेन। ओके, ये फिर लेफ्ट हो गया था। तो देखिए डीसी वोल्टेज आप बढ़ाइए धीरे धीरे। हमने रेजिस्टेंस को मान लीजिए यहाँ फिक्स कर दिया है। रेजिस्टेंस हमारा मान लीजिए 682 पे फिक्स है, ठीक है। अब हमने धीरे धीरे इसको बढ़ाया, पहले हमने थोड़ा सा बढ़ाया, तो एक मिनट 0.9 के आस 0.5 पे देखिए हमको 0.1 मिल रहा है रिवर्स करंट, ठीक। अब हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर हमको देखिए 2.85 पे 0.1 मिल रहा है, ठीक। इसको थोड़ा और बढ़ाइए। मैं थोड़ा तेजी से बढ़ा रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 6.52 पे भी हमें, अभी करंट आपकी वही 0.1 ही है रिवर्स करंट। थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाता हूँ।
10.5 कर दिया तब भी वही मिल रहा है। ठीक, थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं, 16 कर दिया तब भी वही है। ठीक, थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए रिवर्स वोल्टेज ये दिखा रहा है 30, जब तक 30 नहीं पहुंचेगा, जब 30 पे पहुंच जाएंगे ना तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ 30 दिखा रहा है, यस सर, यस सर। कि जब 30 sir. रीचिंग पे पहुंचेगा, अभी हम 21 तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं और बढ़ाता हूँ इसको, थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ तक आ गए हम। डिस्टेंस थोड़ा ये कम भी कर देखिए, दीजिए सर। हाँ वो तो आप चेंज कर सकते हो, मैं तो आपको पूरा एक फिक्स करके दिखा रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि 29 पे पहुंच गए, लगभग लगभग क्लोजिंग पे हैं, लेकिन अभी भी देखिए चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इसको एक्सीडिंग पे गए हैं, ये देखिए करंट कहाँ पहुंच गई, करंट देखिए फट से अमीटर की रेटिंग बढ़ गई, दिख रहा है? अभी देखिए करंट आपकी 30 सर पॉइंट फुल। समथिंग आ गई, Sir, drastic देखे? change in current. हाँ, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। अब इसका वोल्टेज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, करंट आपकी इंडिपेंडेंट हो गई वोल्टेज, तभी तो इतना तेज चेंज हुआ। यहाँ पे लगभग लगभग ब्रेकडाउन हमारा करीब 30 के आसपास हो गया, 30 वोल्टेज। ठीक है ना? इसी को अगर हम प्लॉट करेंगे, ऐड टू टेबल बन गया, इसका प्लॉट देखिए आप। जब आप प्लॉट देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से प्लॉट आ गया। ये आपका क्या है, दिस इज द वोल्टेज। ये देखिए स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है करंट में। ये देखिए रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, करंट इज ऑलमोस्ट सेम, लगभग नील के बराबर। जैसे ही -29.7 के आसपास पहुंचे हैं, लगभग यहाँ पे, ये देखिए वैल्यू भी दिखा रहा है। जैसे -29.7 पे पहुंचे, तुरंत करंट एकदम से बढ़ गई है। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। ये आपका ब्रेक, दिस इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ऐसे आप इसका भी यहाँ से प्लॉट प्रिंट ले सकते हैं, एंड यू कैन मेजर द फॉरवर्ड रिवर्स करंट, रिवर्स रेजिस्टेंस आल्सो। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट Yes. इसमें? बेटा किसी को भी पीएन जंक्शन डायोड में डाउट? नो सर। कनेक्शंस में, रीडिंग लेने No, में, sir. वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल लैब, ऐसे ही आपको वर्चुअल लैब करनी है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई स्किप नाउ, आई कैन टर्मिनेट द सेशन। आई थिंक यू ऑल हैव मार्क योर अटेंडेंस एज वेल। अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क कर दिया है? यस सर। all of you have marked your attendance? Someone have Yes, not sir. marked, kindly mark immediately. Okay, so किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे आप जर्मेनियम के लिए भी कर सकते हैं। I have told you about silicon diode, same thing will be for germanium also। ठीक है ना? तो ये सारे जितने भी टेबल्स हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको मैनुअल में लगाना है। आपको मैनुअल हम देंगे, आपको उसी तरीके से लिखना है, लेकिन आप टेबल्स आप खुद से ड्रॉ करिए, कोशिश करिए खुद से बनाने की। ठीक है, इसको करके आप देखिएगा। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर यू द वीडियो ऑफ दिस लैब। ठीक है? Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा, फिर थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.